So far, we have discussed in this chapter about the origin of life and the evidences of evolution. Very two important topics that we have covered is several theories which were explaining that how the life might have originated, but the correct of them was the last theory, that was the chemical evolution and the biological evolution, which was given by Oparin and Harding, and different researchers who have proved that how the first life might have originated. And from that, there was origin of prokaryotes, heterotrophs, autotrophs, and then after the eukaryotes, and lastly to come with the multicellular organisms. So in this way, this explains the theory of origin of life. Second topic that we had considered, that how can we consider that evolution has occurred. Evolution can only be studied on the basis of evidences of evolution. अगर हमें evolution study करना है या हमें समझना है कि whether evolution has occurred or not, तो उसे समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा एसेंशियल ये है कि हम एविडेंसेस पे ध्यान दें. इवोल्यूशन के कई सारे एविडेंसेस हमने आगे डिस्कस किए, लाइक पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हमने अलग अलग तरह के फॉसिल्स और कौन से रॉक्स में से कौन से एरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स मिले थे, इन सब की बात की थी. फिर हमने बात की थी अबाउट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हमने देखा था अबाउट होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स. Then we have discussed about the embryological evidences stating that embryos of all early vertebrate organisms is similar. Same way, the larva of the invertebrate organism also shows some similarity, which means that there might be some common ancestor from which they all have been derived. The third type of evidences, the fourth type of evidences that we discussed were the biogeographical evidences, which were on the basis of the lands, the continents, which got on separated, due to which there was discontinuous distribution of closely related species, as well as there was restricted distribution of certain organisms. Lastly, we have discussed about the adaptive radiation, which shows that there are organisms which are having common ancestor, but they develop different functional structures. They develop different functional structures, so they are said to be radiating from an ancestral stock, which was known as adaptive radiation. Now we are moving on to the next very important part of the chapter. तो चैप्टर का पहला पार्ट था थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. चैप्टर का दूसरा पार्ट था द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. चैप्टर का थर्ड पार्ट है ये, जो है थियरीज ऑफ इवोल्यूशन. कई सारे रिसर्चर्स ने अपनी खुद की थियरीज दी थी टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन. सो वी आर मेंशनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विच थियरीज वेर गिवन for evolution. The first theory that was given is Lamarckism, which is also known as theory of inheritance of acquired characters. Acquired characters. पहली थियरी है लेमार्किज्म, और ये थियरी को ऐसा भी कहा जाता है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. मतलब ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम में जो कैरेक्टर्स एक्वायर करेंगे उन्हें इनहेरिट करेंगे. हम सारी ही थियरीज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. द सेकेंड थियरी दैट वाज गिवन वाज डार्विनिज्म, विच इज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. यहां पे नेचुरल सिलेक्शन मतलब द सिलेक्शन दैट इज बीइंग डन बाय नेचर, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो ये हमने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आगे एक टॉपिक में पढ़ा था. तो ये थियरी है डार्विनिज्म की. द थर्ड थियरी वाज थियरी गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीज, म्यूटेशन थियरी. Because according to Hugo de Vries, the evolution has occurred suddenly, abruptly it has occurred, and that is also due to some sort of mutation in the genetic material. कुछ म्यूटेशन हो जाने की वजह से नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लाइफ फॉर्म्स जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज. एंड द लास्ट थियरी इज नोन एज द मॉडर्न थियरी और the synthetic theory
इवोल्यूशन। मतलब टोटल ऐसी 4 थियरीज दी हैं। सबसे पहले दी थी लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशन थियरी और मॉडर्न थियरी। तो चारों थियरी बहुत ही मीनिंगफुल हैं और सारी थियरीज में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है दैट दे हैव एक्सप्लेन रिगार्डिंग द इवोल्यूशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू बिगिन विद द थियरी दैट इज लेमार्किज्म। Now Lamarckism. Lamarckism is the theory that was given by the researcher known as Lamarck. So it was given by Lamarck. According to him, some postulates are given. Some postulates मतलब थोड़े statements दिए हुए थे for explaining the concept of evolution, for explaining the why evolution has taken place. लेमार्क जो है उन्होंने कई postulates दिए थे। तो पहले हम उन postulates की बात करते हैं। तो first thing that was said by Lamarck was internal vital force. Internal vital force. इंटरनल वाइटल फोर्स का मतलब ये है दैट इफ एन ऑर्गेनिज्म विशेस टू हैव समथिंग फ्रॉम विद इन, द ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू अचीव। जैसे कि आई वॉन्ट, दो ये हाइपोथेटिकल है और कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। जैसे कि जिराफ है, जिराफ को अगर चाहिए कि उसका नेक लंबा होता जाए बिकॉज इट हैज टू रीच टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स, तो उसका नेक लंबा होगा बिकॉज इट इज एन इंटरनल फोर्स दैट डेवलप सच चेंज इन स्ट्रक्चर। So internal force theory ऐसा समझाता है that if an organism wishes to have something from within, the organism will be having that particular change in the structure or a particular change in the function. ये समझाया गया है internal force theory में या internal vital force में। Next is change in environment. Change in environment and new needs. हमें पता है कि जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता जाता है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऑर्गेनिज्म ऑल्सो चेंजेस, ऑर्गेनिज्म ऑल्सो अंडरगोज वेरिएशंस। फॉर दिस चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म हैज रिक्वायरमेंट। उसकी क्या होती है, कई अलग अलग तरह की जरूरत होती है। And for accomplishing these needs, the organism has to develop some additional structure. जब हम इन सबके एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको बहुत इजीली पता चलेगा that what it is trying to say. Change in environment and new needs. Because of the constant changing environment, the organism always has some constant change within it. And in order to fulfill this change, they require certain changes in their body structures. So these changes in support to the environment was the second postulate that was given. Third one is use and disuse of organs. Use and disuse of organs. अगर organs useful हैं तो वो ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होंगे और जो ऑर्गन्स इतने यूजफुल नहीं है वो रिड्यूस हो जाएंगे या तो फिर वेस्टिजियल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स मतलब क्या, उसने ऐसा कहा कि जो ऑर्गन्स एसेंशियल होते हैं वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और जो ऑर्गन्स इतने एसेंशियल नहीं होते वो लेस डेवलप्ड रहते हैं या तो वेस्टिजियल हो जाते हैं। अनदर थिंग इज इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters. Inheritance of acquired characters. लाइफ टाइम में या तो यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से या तो एनवायरमेंट की वजह से, न्यू नीड्स की वजह से या तो इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप करता है, कोई नया पार्ट डेवलप करता है तो वो क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। Because it is an acquired character, it will get inherited into the next generation. So according to if there is any change, जैसे कि for example मैंने अभी कहा
कि जिराफ इन ऑर्डर टू फीड ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट्स बिकॉज देयर वाज नो सरफेस वेजिटेशन, तो प्लांट में ऊपर की तरफ ट्रीज को पिक करने के लिए, लीव्स को पिक करने के लिए जिराफ को कॉन्स्टेंटली अपना जो नेक है वो इलोंगेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से जिराफ का नेक क्या हो चुका है, इलोंगेट हो चुका है। उसके के बाकी के सारे जनरेशंस में वो कैरेक्टर क्या हो चुका है, इनहेरिट हो चुका है। मतलब नाउ ऑल द जिराफ्स आर बीइंग बोर्न विथ लॉन्गर नेक्स। So what are they trying to say is that if any character is being acquired, this character is going to be inherited into the next generation. And lastly, it was said that this results, if these characters are going to be inherited and constantly the changes are going to occur from one generation to another generation, it will ultimately result into formation of a new species. Formation of new species will occur if the characters keep on getting inherited. अगर characters inherit होते रहेंगे और ऐसा एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीसरा जनरेशन अगर कंटिन्यू रहा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब इन पांचों चीजों को समझने के लिए हमें थोड़े ऐसे एविडेंसेस लेने पड़ेंगे विच सपोर्ट्स द लेमार्किज्म। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द एविडेंसेस दैट support Lamarckism. Now what are the things that support Lamarckism? Lamarck ने ये तो कह दिया कि ऑर्गेनिज्म को अगर जरूरत अंदर से डिजायर होगी तो वो ऑर्गन या जो भी पार्ट है वो ज्यादा डेवलप होगा। एनवायरमेंट चेंज होता रहता है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी नई नीड्स की जरूरत होती है, तो नई जो नीड्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए उनका स्ट्रक्चर, उनका पार्ट जो है वो चेंज होगा। जो ऑर्गन ज्यादा यूज में है वो वेल डेवलप्ड है, जो ऑर्गन्स कम यूज होते हैं वो लेस डेवलप्ड हो जाते हैं। अगर कोई कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म ने एक्वायर किया है तो उसका नेक्स्ट जनरेशन में भी वो कैरेक्टर पास ऑन होगा। और लास्टली अगर ऐसे कैरेक्टर्स बार बार पास ऑन होते रहे और चेंजेस आते गए इन द ऑर्गेनिजम्स, अल्टीमेटली इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ये 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। अब पोस्टुलेट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जांपल्स तो देने पड़ेंगे, तो सबसे पहला एग्जांपल जो दिया था दैट वाज ऑफ जिराफ। सबसे पहला एग्जांपल किया था किसका, जिराफ का। तो ऐसा माना जाता है कि एंसेस्टर्स, मतलब जिराफ के जो एंसेस्टर्स थे वो भी डोंकी की तरह छोटे ही थे साइज में, विद अ नॉर्मल साइज ऑफ नेक। फिर क्या होता गया कि वो जिस जगह पे वेयर दे वेर हैबिचुएटेड एट दैट प्लेस देयर वाज नो सरफेस वेजिटेशन, सरफेस पे कोई भी तरह का वेजिटेशन नहीं था, जिसकी वजह से जिराफ को कॉन्स्टेंटली अपना जो नेक है वो लंबा करके ऊपर के ट्रीज पर से जो लीव्स है वो लेने पड़ते थे। ऐसा कॉन्स्टेंटली करते रहने पर क्या हुआ कि इट हैपेंड दैट देयर नेक गॉट इलोंगेटेड। Their neck got elongated just because there was change in their requirement, change in their new needs। मतलब उसे जरूरत थी elongated neck की, जिसकी वजह से उसने elongated neck डेवलप किया in order to survive। Because change in environment में मतलब नीचे कोई भी vegetation है नहीं, तो वेजिटेशन चेंज हुआ, अगर ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं होगा उस तरह से तो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दे ग्रू लॉन्गर नेक्स। सो ग्रोइंग लॉन्गर नेक्स, जिराफ में डेवलपिंग लॉन्गर नेक इज कंसिडर्ड, developing a longer neck is considered to be what? Is considered to be a new need due to which it has developed a longer neck to take the leaves from the trees। तो ये एक एविडेंस ऐसा है जो लेमार्किज्म को सपोर्ट करता है। दूसरे एविडेंस की बात करें तो जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स आर नोन टू बी, इनके एंसेस्टर्स जो थे, एंसेस्टर्स वर लिजार्ड लाइक ऑर्गेनिजम्स। But as the snakes had to crawl, they did not require the limbs, and therefore the limbs जो थे वो क्या हो गए, वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गए, और फिर तो ऐसा हुआ कि limbs जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब ऐसा कहते हैं कि स्नेक्स जो होते हैं उनमें अभी भी
पेल्विक गर्डल्स प्रेजेंट है। पेल्विक गर्डल्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि उनके पास भी हिंड लिम्स थे, तभी तो उनके पास गर्डल्स है। पाइथन जैसे स्नेक्स के पास पेल्विक गर्डल्स होते हैं। ये पेल्विक गर्डल्स का मतलब ये हुआ कि उनके पास पहले क्या होते थे, लिम्स होते थे, हिंड लिम्स होते थे। बट लेटर ऑन जैसे स्नेक्स जो है उनको क्रॉल करना होता है तो उन्हें लिम्स की जरूरत नहीं है, और लिम्स की जरूरत नहीं है इसलिए लिम्स तो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो उसकी जगह पे अभी भी क्या प्रेजेंट है, पेल्विक गर्डल्स जो प्रेजेंट है, दैट शोज दैट once upon a time they had the presence of limbs। तो ये क्या बताता है, use and disuse of organ। if a organ was useful they would have developed it, if the organ is not useful now they do not use it or now it has became vestigial। तो ये एक और एक एग्जाम्पल हुआ जो सपोर्ट करता है क्या, लेमार्किज्म को। The third example which supports the Lamarckism is aquatic birds। एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स जो होते हैं वो कैसे हैं, एकदम से रिड्यूस्ड। बहुत ही छोटे विंग्स होते हैं, जैसे कि डक होता है तो उसके विंग्स क्या हो चुके हैं, रिड्यूस्ड हो गए। पर उसकी जगह पे उनके टोज कैसे हैं, देयर फीट्स आर वेब्ड। उनका फीट कैसा है, वेब्ड। वेब्ड मतलब बीच में स्किन का फ्लैप है, ऐसे टोज होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं। तो वेब्ड टोज होने का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू स्विम, क्योंकि उनका फंक्शन अब उड़ना तो है ही नहीं, उनका फंक्शन क्या है, टू स्विम इन द वाटर। सो एज एन ऑर्डर टू स्विम इन द वाटर दे डोंट रिक्वायर विंग्स, दे रिक्वायर वेब्ड टोज। सो देयर टोज आर डेवलप्ड, their toes are developed well whereas their wings are reduced, which shows the use and disuse of organs। तो ये एक और एक एग्जांपल हुआ। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स का। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं इनके विंग्स जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, वेस्टिजियल। इनके विंग्स वेस्टिजियल होते हैं क्योंकि उनका उड़ने का काम ही नहीं है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव विंग्स विच आर रिड्यूस्ड और वेस्टिजियल। अगर वो इंपॉर्टेंट होता ऑर्गन तो वो वेल डेवलप्ड होता, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए क्या हो चुका है, वेस्टिजियल। सो अगेन इट इज सपोर्टिंग। अनदर थिंग इज केव ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स। इनके जो एंसेस्टर्स थे दे हैड नॉर्मल आइज, एंसेस्टर्स हैड नॉर्मल आइज, but as they lived in caves, that is they lived in dark, their vision got reduced। उनका विजन इसीलिए रिड्यूस हो गया क्योंकि वो अंधेरे में ही रहते थे। तो अंधेरे में ही रहने के लिए वजह से उनका विजन जो है वो नॉर्मल नहीं रहा। तो ये भी एक ऐसा ही समझाता है द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में जिराफ आएगा क्योंकि जिराफ का नेक जो होता है वो लॉन्ग होता है, और फिर वो लॉन्ग नेक जो है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर हो गया कि बाकी के जनरेशन में भी लॉन्ग नेक जिराफ्स ही रहे। तो जो कैरेक्टर्स एसेंशियल होते हैं वो आगे की जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। बट Lamarckism is not very correct because there are several evidences which criticize Lamarckism, मतलब Lamarckism को support नहीं करते हैं। तो next हम बात करते हैं about evidences which criticize the work of Lamarck। So we have discussed about the Lamarckism which states that different postulates. These postulates were internal vital force, another was use and disuse of organs, change in the environment leads to development of new needs, inheritance of acquired characters, and lastly there was speciation, that is when these characters constantly are inherited from one generation to another, it might ultimately lead to formation of a new species itself. So these were the postulates given by Lamarck and we had studied that what were the evidences which support the Lamarckism. Now we are discussing that Lamarckism is not 100% correct. So there are several criticism of Lamarckism also. So we are discussing about criticism of Lamarckism.
Lamarckism was not very correct, and therefore there are some of the evidences which shows that Lamarckism can be wrong also. That is, the postulates given are not very correct. So the first criticism was given by August Weismann. He has given theory of continuity of germplasm. August Weismann was a researcher who was very well known for his theory of continuity of germplasm. Now this August Weismann, a researcher, he has done an experiment on the rats. He has done the experiment on the rats, and what did he do is, he took some rats, about 20 to 30 rats, and he cut the tails of the rats. He cut the tails of all those rats. After cutting the tails, they allowed the rats, allowed them to interbreed. Now if two rats having the tails which are being cut, two rats having small tails, now when they breed, what was expected, that in the next generation he expected that the rat which will be born will not have a tail, because the parental tails of the rats were being already cut. जो parental rats थे उनकी tails तो cut कर दी गई थी. फिर उन्हें क्या किया, he allowed them to breed. ब्रीड होने के बाद उसे ऐसा एक्सपेक्ट हुआ कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो रैट्स आएंगे वो रैट कैसा होगा, छोटी टेल वाला. ही डिड दिस फॉर अबाउट 20 जनरेशंस. 20 जनरेशंस तक वो ये करता गया, बट ऑल रैट्स born with normal tails. So what does this experiment prove? Cutting the tail of the rat was an acquired character. रैट में क्या किया गया था, उसका टेल जो है वो कट कर दिया था, वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है. एक्वायर्ड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू लेमार्क क्या होना चाहिए, इनहेरिट होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, पर वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हुआ नहीं. ये प्रूव करता है, और इसने एक दो नहीं 20 जनरेशन तक ऐसा करता गया कि कोई तो जनरेशन में ऐसा होगा कि रैट्स विद स्मॉलर टेल्स आर बीइंग बोर्न, बट ही डिड नॉट फाउंड एनी ऑफ सच रैट. तो रैट की टेल जो है वो नॉर्मल साइज की ही ग्रो हो रही थी, विच शोज दैट लेमार्क ने जो कहा था कि इनहेरिटेड जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, वो चीज क्या है, गलत. एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब अ कैरेक्टर विच यू एक्वायर इन योर लाइफ. दूसरा एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर रेसलर हो, रेसलर जिसके स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड मसल्स होते हैं, but this is not inherited in the newborn. Are you getting it? रेसलर जो है वो एक कैरेक्टर एक्वायर करता है, क्या, डेवलपिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड मसल्स उसने डेवलप किए. वो क्या हुआ, एक्वायर्ड कैरेक्टर. वो एक्वायर्ड कैरेक्टर इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसे अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है, वो उसने एक्वायर किया है खुद की लाइफ टाइम में. पर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या आगे की जनरेशन में पास ऑन होगा, नहीं. बर्थ पे जो बेबी बॉर्न होगा वो नॉर्मल मसल्स के साथ ही डेवलप होगा. Again he will have to work out for developing the muscles. If there was inheritance of acquired character true according to Lamarck जो बताया था, अगर वो सही होता तो रेसलर का जो बेबी होता उसके भी मसल्स कैसे होते, पहले से ही वेल डेवलप्ड मसल्स, टोन मसल्स होते. पर ऐसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते नहीं है. Another example was given by a researcher known as Pavlov. Pavlov have experimented on dog by ringing a bell. The dog feeds on the foot. मतलब डॉग को एक हैबिट बना दी थी. कैसी हैबिट, कि बेल बजने पर डॉग विल कम एंड ही विल ईट द फूड. मतलब वो जो भी फूड रखा होता है वो फूड खाने आ जाता है. तो बेल बजते ही हर बार डॉग आ जाता है. देन आफ्टर व्हाट डिड ही डू इज कि उसने
फूड नहीं रखा, सिर्फ बेल बजाया। अब बेल बजा, इसलिए डॉग क्या है, ही हैज अडेप्टेड टू दैट रिंगिंग ऑफ द बेल टू कम फॉर द फूड इवन इफ द फूड वाज नॉट केप्ट देयर। फूड नहीं होने पर भी डॉग जो है वो बेल बजने पर आ जाते हैं। पर डॉग के जब बर्थ, डॉग के नेक्स्ट जब बेस्ट बाकी के जो पपीज होंगे, बर्थ जो होगा डॉग के बाद, तो when dog will breed and it will give rise to the next puppies, will the puppies again behave in the same way? No, the puppies on ringing the bell did not come for the food. If it was an inherited character from a parent, तो जो डॉग बेल बजने पे खाना खाने आ रहा है वो पपीज भी क्या होने चाहिए, सिंस द बर्थ ओनली, उनपे भी ये भी अडेप्टेशन होना चाहिए कि बेल बजने पे दे शुड ऑल्सो गो टू ईट द फूड। मतलब ringing the bell and coming for taking the food was a character acquired by only the parental dog, not by the puppies, because if it would be inherited तो puppies भी जो होते वो डायरेक्टली फूड पे आ जाते on ringing the bell। तो ऐसा एक अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट किया था पैवलोव ने। आप समझिए क्या मैं कहना चाह रही हूँ, बेल बजने पर डॉग जो है वो फूड के लिए आ रहा है, फूड के लिए आ रहा है, वो डॉग आ रहा है, पर अगर डॉग के बाद उसके पपीज होंगे तो दे विल अगेन हैव टू अडैप्ट देमसेल्व्स दैट रिंगिंग द बेल दे शुड गो फॉर ईटिंग द फूड। मतलब ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो इनहेरिट हुआ नहीं। मतलब ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डू नॉट गेट इनहेरिटेड। ये बहुत ही समझने वाली चीज है जो पैवलोव ने समझाई थी। अनदर थिंग, बोरिंग और पियर्सिंग of ears and nose in women। हर एक जब गर्ल बॉर्न होती है तो उसके ईयर्स जो होते हैं उन्हें पियर्स किया जाता है, राइट। जस्ट आफ्टर द बर्थ विद इन अ फ्यू मंथ्स द गर्ल इज हैविंग द पियर्सिंग। ना ये एक बार पियर्सिंग किया, पर क्या उसके नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा आता है कि नेक्स्ट जनरेशन गर्ल ऑलरेडी हैज द पियर्सिंग इन हर ईयर्स? No, again you have to pierce the ears of the next girl also which is born, next generation which is born. If this is even continued from 20 generations, then also girls will be coming with a normal ear without any piercing. Piercing has to be done. If the piercing was an acquired character, it should pass on to the next generation. Acquired तो है पर वो next generation में pass on होता नहीं है। So that shows that पियर्सिंग जो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिट हुआ नहीं। अगर वो इनहेरिट होता तो नेक्स्ट जो भी गर्ल्स आती उनके भी ईयर्स कैसे होते, पियर्स ही होते। ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो हम एक्वायर करते हैं वो इनहेरिट नहीं होता। अनदर एग्जाम्पल दैट वी कैन कंसिडर इज, जैसे कि हमने यहाँ पे पैवलोव का, रेसलर का, बोरिंग ईयर्स का, वैसे ही चाइना जो है उसमें फीमेल्स, China females wear iron shoes to keep their feet small. To keep their feet small. फीट को स्मॉल रखने के लिए आफ्टर अ सर्टेन एज जो एडल्ट फीमेल्स होती है वो क्या करती है, आयरन शूज पहनती है, सो दैट द साइज ऑफ देयर फीट रिमेन स्मॉल। अगर ऐसा होता तो जो न्यू बॉर्न होते उनके ऑलरेडी फीट्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए थे, छोटे होने चाहिए थे, बिकॉज द अडल्ट्स थ्रू आउट देयर लाइफ वेयर दीज आयरन शूज, तो जिसकी वजह से उनका फीट का साइज जो होता है वो छोटा रहता है। तो नए जो गर्ल्स बॉर्न होने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे फीट वाले मदर से बॉर्न हुए हैं, तो छोटे फीट वाले मदर से बॉर्न होने वाला बेबी भी कैसा होना चाहिए, छोटे ही फीट वाला। पर ऐसा नहीं था। द न्यू वंस हैड अ नॉर्मल साइज ऑफ द feet, and again she also had to wear the iron shoes to develop a small sized feet। तो ये समझाता है that ऐसा कोई एक्वायर करने वाला कैरेक्टर हम जो है वो इनहेरिट करते नहीं है। तो ये एग्जांपल्स है। इसके अलावा मुस्लिम्स में जो होता है वो सर्कमसिशन किया जाता है पेनिस का, बट इट हैज टू बी डन इन एवरी जनरेशन, because the next generation boys which will be developed, which will be formed, are having normal penises only. They don't have the circumcision already done in their penis. तो वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिट होगा नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स प्रूव करते हैं दैट लेमार्किज्म इज नॉट वेरी करेक्ट। लेमार्किज्म में ये चीज सही है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, कई लेस डेवलप्ड होते हैं, वो थोड़े पोस्टुलेट सही है, बट ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड
ये चीज लेमार्किज्म में गलत है. So this all shows that Lamarckism is being criticized. The next theory that we will discuss is the Darwinism. What was said by Darwin and the postulates of Darwin.